Good morning, class 10th. Let's begin with our unit 1D. This is the D portion of your unit number 1. This is entrepreneurial skill. Second. So session 1 is about characters. What is entrepreneurship? So entrepreneurship means creating a business and gradually scaling it to generate a profit. Means the person who is creating a business and gradually scaling it to generate a profit and earn a profit from it. So an entrepreneur is the one who set up a business this way that कि उसने अपना business create किया है और उससे profit generate किया है. So entrepreneurs are the sum of the world's most powerful transformers. Okay, they change the world with their imagination, like Steve Jobs, Bill Gates. They are some of the entrepreneurs. So next we are having what are the skills that entrepreneurs are having. First, entrepreneurs are planner and confident. So they plan each and everything before they are executed and very much confident about that. Like entrepreneur knows what they wish to achieve and they have a plan to achieve it. मतलब वो जानते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनका गोल क्या है, उनके एम्स क्या हैं और उसके लिए उन्हें कैसे प्लान करना है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके. प्लानिंग में आपका क्या जाता है? एंटिसिपेटिंग रिस्क हैं, थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, क्या क्या यूज़ करने हैं आपको, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है. ओके, सो दिस ब्रिंग कॉन्फिडेंट इन व्हाट दे डू. Confidence is a trait that can be developed. So if some aspires to do, an entrepreneur can develop self-confidence. Okay, next point is creative. As they are having their plan and they are very much confident about their plan, they are creative also. जब किसी ने सोचा है कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे ये चीज़ इस हिसाब से बदलनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान क्रिएटिव भी होगा, तभी उसने इतनी थिंकिंग रखी. लेट्स चेक. राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड देन डिवाइजिंग अ सोल्यूशन फॉर इट, क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर्स वर्क इन द बैकग्राउंड. जब कोई इंसान आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि दिक्कत कहाँ पे है और उसे कैसे सॉल्व करना है, तो जो क्रिएटिविटी होती है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में रन करती है. नेक्स्ट, क्रिएटिविटी कॉजेज इनोवेशंस. ओके, इनोवेशन आइडियाज़ कम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड बेस ऑफ द क्रिएटिविटी. नेक्स्ट इज़ रिस्क टेकर. जब भी हम कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो माना जाता है जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा. इवन आप कोई छोटा सा भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क सब में होता है. सो एंटरप्रेन्योर इज़ द वन हु इज़ क्रिएटिंग द बिज़नेस. जब कोई बिज़नेस क्रिएट कर रहा है तो जनरल सी बात है दैट ही इज़ ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क. इंट्रोड्यूसिंग एन इनोवेटिव सोल्यूशन अमंग messes and then promoting it to the accepted is a challenge task. It is difficult to predict whether it will be liked by targeted customer or rejected. ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो भी चीज़ हम हर बार बनाएं. रिस्क ये है कि जो भी आपने बनाया है क्या वो आपके कस्टमर्स को पसंद है, कहीं वो उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दे रहे हैं. आई एम राइटिंग ऑल द पॉइंट्स हेयर. फर्स्ट इज़ प्लानर. Okay, second one is creative. Third one is risk taker. Next, fourth point is professional. Okay. Fifth point is skillful. Next point is open to knowledge, learning and failures. Open to knowledge, learning and failure. So we are at the point number 4, that is professional.
So while dealing with the team members, service provider and other stakeholders, entrepreneur follows a code of profession. Being highly professional is very much necessary to become an entrepreneur. Professionalism is a combination of major traits like self-management, discipline and keep your commitments. तो कोई भी प्रोफेशनल इंसान होता है उसके क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, मीन्स दे आर 3 मेजर ट्रेड्स जिनका कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं. फर्स्ट वन इज़ सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है. सेकेंड वन इज़ डिसिप्लिन एंड थर्ड वन इज़ कीपिंग योर कमिटमेंट. व्हेन यू आर जब आप किसी को कुछ कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा काम करना है तो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा. अगर आपने कहा है कि इस डेट तक हम सप्लाईज सारे दे देंगे तो आपको उसी डेट तक सारे सप्लाईज देने होंगे. सो यू हैव टू कीप योर कमिटमेंट. नेक्स्ट इज स्किलफुल. In this, entrepreneur must be good at interpersonal skills to develop rapport and longer, fruitful relationship with all the people, including on the business processes like hiring the team, arranging the resource, developing relationship. Skillful in social interaction. अगर आपने कोई कंपनी सेटअप की है तो आपको इसके लिए एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, ठीक है. एम्प्लॉयज़ हो गए, फिर उनके साथ कैसा आप रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं, जहाँ से आप अपने गुड्स को उठाएंगे, जहाँ आप अपने गुड्स को सेल करेंगे, ठीक है. जितने भी लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ आप सो फॉर मेंटेनिंग अ गुड इंटर रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, विद डेवलपिंग गुडविल विद वेंडर्स एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज़ ओपन टू नॉलेज, लर्निंग एंड फेलियर. जो भी एंटरप्रेन्योर है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक काम में फ़ेल हैं तो आप बेकार हैं, नहीं. जब भी आपसे कोई गलती हो, जब आपका कोई काम ख़राब हो, मतलब एंटरप्रेन्योर को लेके बात करते हैं, देन ही और शी मस्ट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, ठीक है. ओपन टू नॉलेज मीन्स अगर आपको कुछ कहीं भी सीखने को मिलता है तो आपको वो चीज़ तब सीख लेनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ या मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं सीखनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपको हमेशा ओपन टू नॉलेज एंड लर्निंग रहना चाहिए. मीन्स जब भी कहीं पे भी कुछ नॉलेज मिल रही है तो उसे गेन करें, कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसे सीखें. इवन अगर आपको ये है कि हाँ आप फेल हुए हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. ओके. नेक्स्ट इज एम्पैथेटिक. Okay. After that we are having customer oriented. मतलब जैसा आपका कस्टमर चाह रहा है हमें उस हिसाब से प्रोडक्ट उसको डिलीवर करना है. वो चीज़ नहीं डिलीवर करना है जो हम बना रहे हैं और हम अपने हिसाब से बनाएंगे, नहीं. आपको चीज़ ही उस हिसाब से बनानी है जैसी कस्टमर की नीड हो, ठीक है. बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों ने चीज़ें बनाई ही इस हिसाब से हैं कि यूज़र की नीड्स डे टू डे कम होती रहें या फिर फुलफ़िल होती रहें. कम तो नहीं होती हैं नीड्स बट फुलफ़िल हो सकती हैं. नेक्स्ट इज़ पैशनेट. नो मैटर हाउ रोजी और डार्क आर द थिंग्स आर, एन एंटरप्रेन्योर्स पैशन नेवर डम्पन्स. They look into the eyes of the challenge with great passion or set on to win over it. If they meet the failure, they look for what had gone wrong and how it could be corrected, then set in with an even or more passion to retry. Passionate होना चाहिए, नहीं है कि हालात ख़राब हैं तो उस चीज़ के बारे में नहीं करना चाहिए. कभी कोई गलती हो जाए तो फिर से उसको ये सोचिए कि गलती किस रीज़न से हुई है एंड आप कैसे उस गलती को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. सो आप में पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें ये काम करना है. नेक्स्ट इज़ एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स, ठीक है. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जेन्युइन सी बात है, जब एक बिज़नेस सेटअप करेंगे और एक स्केलिंग प्रॉफिट तक उन्हें ले जाएंगे, इट मीन्स उनका कम्युनिकेशन बाकी लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए विद देयर एम्प्लॉयज़, विद देयर पीयर्स and the other people, whether it is verbal communication, non-verbal communication, formal, informal, written, oral, किसी भी फॉर्म का कम्युनिकेशन हो वो गुड होना चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन होगा तभी बात बनेगी. ओके. नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट, here we come communication. Next is leaders. Okay.
पीपल लुक एन एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है, लोग एंटरप्रेन्योर्स को कैसे देखते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जो किसी चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दे एडमायर हिज और हर पोजीशन, एन एंटरप्रेन्योर इज द क्लियर व्यू ऑफ हिज और हर टीम एंड द कस्टमर, सो ही मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट leadership skill where even motivation is required. For team, an entrepreneur leads by example, and for customer he demonstrate a code of ethics which are qualities of a leader. जो भी entrepreneur होता है he must show the qualities of a leadership, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ को, टीम मेंबर्स को लेके चलना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो और अच्छा काम दे सकें. Next we are having functions of a entrepreneur. Okay, so we are having 3 functions of an entrepreneur. Let's have a look over them. First function is of management. Second function is sale and promotion. And the third one is finance and commerce. So let's have a look once again. So what are the 3 functions of an entrepreneur? First one is management. Second one is sales and promotion. And the third one is finance and commerce. So let's start with the first one, that is management. Predicating, planning, organizing, coordinating and controlling the team functions and interaction is also looked into by an entrepreneur. Major managerial activities are गुड मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट में हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. So in management we are having first point is planning, that is planning at every level include initiating the processes, कैसे processes शुरू करने हैं, anticipating the risk, कौन कौन से रिस्क लेने हैं, कैसे लेने हैं, एंड आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज कि आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं. सेकेंड वन इज़ अब आपने प्लान कर लिया है कि आपको क्या करना है. नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्गेनाइजिंग. इट मीन्स अब आप उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है. दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोसेस टू इंश्योर दैट एवरीथिंग वर्क एज अ प्लान. जैसे आपने प्लान किया है, क्या सारी चीज़ें वैसे ही वर्क कर रही हैं, कैसे जो आपकी मैनेजिंग टीम है वो फंक्शन कर रही है, कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट कर रही है खुद में, मतलब आपस में एक दूसरे से और आपके वेंडर्स से, ठीक है, और आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं. थर्ड पॉइंट इज़ रिक्रूटमेंट. इट मीन्स हायरिंग अ न्यू टीम और मेंबर्स. Recruitment. In recruitment we are having recruitment and team building to have right kind of talent and professional to convert the vision into desired product and services. जैसा आप चाह रहे हैं वैसे आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज मिले,
ठीक है. नेक्स्ट इज गिविंग डायरेक्शंस एंड गाइडेंस. सो योर फोर्थ पॉइंट इज गिविंग directions and guidance. So giving direction and guidance wherever needed by the team to keep a progress on track. ठीक है. आपको क्या करना है, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो तो आपका काम क्या है, जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनका ये ध्यान रखना कि उन्हें डायरेक्शन से मतलब कब कौन सा काम करना है, कैसे करना है. ठीक है. Next is controlling. Next we are having controlling. In controlling the proceeding to keep them going as planned and improvising in strategies wherever needed. It means controlling. आप जो भी काम कर रहे हैं आपका प्रॉपर कंट्रोल भी होना चाहिए कि जो आपने काम शुरू किया है आपका प्रोडक्शन कितना है, कैसे आपको एम्प्लॉयज़ को देखना है. ये नहीं है कि वेन एवर यू स्टार्ट द काम अब फिर वो चलता जाए, नहीं. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग sales and promotion. This is the second point. This is the second function of entrepreneur. Sales and promotions. So in this we are having, this is the most crucial and interesting area for an entrepreneur since this influences the process of bringing in revenues and developing business relations, addressing the customer segment and promoting the innovative product. Devising promotional strategies, activities are one of the prime concern of an entrepreneur. ठीक है. एंटरप्रेन्योर जो काम खुद नहीं करता कि वो अपने प्रोडक्ट का सेल्स खुद कर रहा है या फिर प्रमोशन खुद कर रहा है, बट वो अपने टीम मेंबर्स को इस अकॉर्डिंग समझाता है कि उन्हें सेल्स और प्रमोशंस कैसे करनी है, उनके प्रोडक्ट में क्या बेस्ट पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और उनके सेल्स और प्रमोशन कैसे होने चाहिए. क्योंकि जब तक सेल्स और प्रमोशंस नहीं होंगे तब तक कंपनी अपनी बिलिंग हाइट्स तक नहीं पहुंच पाती है. ओके. नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट है, थर्ड फंक्शन है जो हमारा, दैट इज़ फाइनेंस एंड कॉमर्स. ओके. इन दिस फंड्स आर द फ्यूल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्जेक्ट. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, फंड्स. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टार्ट अ बिज़नेस. पहले आप लोन लें या खुद का पैसा हो या कहीं से भी आए, फंड्स आर द फ्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट. सो आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज ऑफ फंडिंग. आपको पहले तो ये जानना ज़रूरी है, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से आपके फंड्स आ रहे हैं. ठीक है. कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हैं. ठीक है. मोबिलाइजिंग द फंड्स आर द एक्टिविटीज़ विच एंटरप्रेन्योरशिप मैनेज. ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक एंटरप्रेन्योरशिप मैनेज करता है, जो फाइनेंस एंड कॉमर्स होता है. कमर्शियल फंक्शन इंक्लूडिंग लुकिंग इनटू द प्रोडक्शन, कैसा आपका प्रोडक्शन चल रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है, या फिर वो सारे सर्विसेज कैसी चल रही हैं जो आपकी सर्विस को या जो आपके गुड्स को डिलीवर कर रही हैं. ठीक है. So this is all about for today's lecture. Tomorrow we are going to learn about the role and significance of an entrepreneur. There are 3 questions in the session and I will send those questions on Google Classroom. Please students check the Google Classrooms